Question number 31. The center of the group of quaternions Q8 is of order. कितने ऑर्डर का होगा? 1, 2, 8, 4. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सबसे पहले सेंटर ऑफ अ ग्रुप देखते हैं. Center of a group G is abelian part of a group. It is defined as Xi into G capital is equal to every C belong to G. CG is equal to GC for all C belong to G. इसका मतलब है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या है? इक्वल है. अच्छा, अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ कोटर्नियंस को. ग्रुप ऑफ कोटर्नियंस क्या होता है? 1 होता है जिसमें -1 आयोटा I माइनस I J माइनस J K माइनस K. From defining the relation of its element we know that 1 minus 1 commute with every element of the group. So 1 and -1 belong to group of quaternion, belong to center of quaternion group. Next है Ij is equal to K but Ji is equal to minus K. Similarly Jk is equal to I and Kj is equal to minus A and so on. This implies that I, J, K do not commute. So minus I, minus J, minus K also do not commute. So these does not belong to center of group quaternions. So the order of quaternion groups will be only 2 elements. These are 1 and -1. Next है A dot into B क्रॉस C is not equal to. ये किसके इक्वल नहीं होगा? A डॉट इंटू C क्रॉस B, A क्रॉस B डॉट C, B डॉट इंटू C क्रॉस A, C डॉट इंटू A क्रॉस B. इसका सोल्यूशन देखते हैं. हमें ये बात पता है कि B क्रॉस C जो है ये इक्वल नहीं होता C क्रॉस B के. We obtain A डॉट into B cross C is not equal to A dot C cross B. So option A करेक्ट हो गया ना. ये क्वेश्चन में पूछा गया इज नॉट इक्वल टू. बाकी तो इन सब की इक्वल हो सकता है लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है? ऑप्शन ए में A डॉट इंटू C क्रॉस B. नेक्स्ट है लेट G बी अ ग्रुप. G क्या है? ग्रुप है. देन द ड्राइव्ड ग्रुप G डैश इज डैश सब ग्रुप ऑफ G. हमने ये बताना है कि G का कौन सा सब ग्रुप है? साइक्लिक है, एबेलियन है, नॉर्मल है, नन ऑफ दीज है. सबसे पहले तो हम ड्राइव्ड सब ग्रुप देखते हैं ये होता क्या है. ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स A B इज इक्वल टू A B A इनवर्स B इनवर्स of the whole group. It is also called commutator subgroup denoted by G dash or G into G bracket and defined as G prime is equal to G is equal to commutator AB. For an abelian group G prime is equal to E. In this way the commutator group may be used as one measure of how far a group is from being abelian. नेक्स्ट इसको नेक्स्ट मज़ीद वो करते हैं. ए ऑप्शन देखें. ए ऑप्शन इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज फॉर G इज इक्वल टू A4 ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन लाइक 1 2 3 is equal to 1 2 1 3 we have G prime is equal to V4 where we know that V4 is not cyclic. ये ट्रू नहीं है. उसके बाद है नेक्स्ट है बी ऑप्शन. इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज फॉर G इज इक्वल टू SN डॉट G प्राइम इज इक्वल टू AN वेयर AN इज नॉन एबेलियन फॉर RN ग्रेटर देन इक्वल टू 4. नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल इफ फॉर एवरी एलिमेंट G बिलोंग टू ग्रुप G एंड H बिलोंग टू H वी हैव G inverse belong to H. Correct option is normal. We prove that the derived subgroup G of any group is normal subgroup of G. इसको हम प्रूव कर लेते हैं. Let A B belong to prime G prime and G belong to G are arbitrary. It is enough to show that G into A B into G inverse belong to G prime.
जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए, ए बी रेज टू पावर के एंड रेज टू पावर जी एंड जी. अच्छा, इज एन एलिमेंट ऑफ g prime for all g belong to g, hence g is normal. So correct option क्या हो गया, let g be a group then the derived group g prime is normal subgroup of g. Next है, let g be a cyclic group then the factor group g over g prime is. तो ये फैक्टर ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा, एबिलियन होगा, नॉर्मल होगा या नन ऑफ दीज होगा. इसका हम सोल्यूशन देखते हैं. सिंस जी प्राइम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वी कैन डिफाइन फैक्टर ग्रुप जी डिवाइडेड बाय जी प्राइम as the group of all left or right coset of g prime in G, that is g divided by g prime is equal to g prime. G element belong to group G with algebraic operation a g prime b g prime is equal to a b g prime. The identity element in the group is e j prime is equal to g prime. Result, a group G is abelian if and only if generator a b is equal to identity for every a b belong to G. So इसका हम देखते हैं. अब नॉन थ्योरम से दैट लेट जी प्राइम बी derived subgroup of a group then G divided by G prime is a abelian. It is sufficient to prove that a g prime dot b g prime belong to G divided by G prime. We prove that a g dot b g is equal to G. सिमिलरली हम इसको जी प्राइम के लिए प्रूव करते हैं. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, जी प्राइम आ गया. अब हमें ये बात पता है कि ए एच इज इक्वल टू एच इफ़ ए बिलोंग टू एच. अगर ए क्या है वो एच से बिलोंग कर रहा है तो ए एच किसके इक्वल आता है, एच के इक्वल होता है. इट्स मीन विच इज़ द आइडेंटिटी इन जी डिवाइडेड बाई जी डैश, हिंस जी डिवाइडेड बाई जी डैश इज एबिलियन. सो correct option is B option. Let G be a group then the factor group G divided by G dash is abelian group. Next है, finite simple abelian groups are of order 4 prime power of 2 prime number. Note that E and G itself are always normal subgroup. ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. आइडेंटिटी और G itself जो होते हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. If a group has no other normal subgroup then it is called a simple group. तो ये क्या कहता है, अगर इसके अलावा इसके कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इस सिंपल ग्रुप कहते हैं. सिंपल ग्रुप, अ ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ़ इट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप. अगर इसके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है तो ग्रुप क्या होगा, सिंपल होगा. केस 1 है, जी इज एबिलियन ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर देन यूजिंग कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम एबिलियन ग्रुप हैज़ अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप. इसमें क्या है, सो ऑप्शन ए बी एंड सी आर नॉट पॉसिबल. देखें जी जो क्या है एबिलियन सब ग्रुप है किसका, कंपोजिट ऑर्डर का. तो इसमें क्या है, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम एबिलियन ग्रुप हैज़ अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप. इसका मतलब तो उसके क्या हो गए, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो वो क्या होगा, सिंपल ग्रुप नहीं होगा. तो ऑप्शन ए बी और सी तो नहीं है क्योंकि 4 प्राइम पावर ऑफ 2 ये तो नहीं हो सकता. उसके बाद है नेक्स्ट केस 2 देखते हैं. जी इज़ एबिलियन ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर उसका क्या है, ऑर्डर प्राइम है. सिंस 1 and P itself are only divisor of P, so it has only 2 subgroup E and G. So finite simple abelian group are of order of prime number. Correct option is D option. क्योंकि प्राइम नंबर में उसकी क्या होते हैं, डिवाइज़र जब 1 होता है या इटसेल्फ वो नंबर होता है. अब ये देखें
कि इसके दो सब ग्रुप बनेंगे, दोनों ट्रिवियल होंगे और नॉन ट्रिवियल ग्रुप सब ग्रुप आएंगे ही नहीं, तो ये क्या होगा, फिनाइट सिंपल एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइम नंबर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर जी इज फील्ड, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटेग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग। सॉल्यूशन देखते हैं, नॉट ए ऑप्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस जी इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन सो इट इज़ नॉट अ फील्ड। ये फील्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते एक्सेप्ट 1 एंड -1 के। नेक्स्ट है नॉट बी भी नहीं है। क्यों नहीं है, नॉट आ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो इंटीजर का ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, ग्रुप नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, नॉट आ डिवीजन रिंग, ये डिवीजन रिंग ही नहीं है बिकॉज डिवीजन रिंग इज़ अ रिंग इन विच डिवीजन इज़ पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करें, डिवीजन इज़ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, वो एग्जिस्ट करें, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जी इज़ इंटेग्रल डोमेन इज़ आ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र एंड जी हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, और जी का कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, इंटेग्रल डोमेन। सेट ऑफ इंटीजर इज़ इंटेग्रल डोमेन, इट इज़ नॉट अ फील्ड, नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट अ डिवीजन रिंग, इट इज़ इंटेग्रल डोमेन। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर इज डैश ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, प्राइम आइडियल, सब रिंग, मैक्सिमल आइडियल, नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन देखते हैं, नोट दैट जी इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू, जी जो है क्यू का क्या है, मैक्सिमल, जी जो है जो क्यू का क्या है, आइडियल नहीं है। सिंस फार अगर आर जो क्या है 1/2 है, क्यू से बिलोंग करते हैं, और ए जो है वो 1 है, जी से बिलोंग करता है, और आर ए जो है वो क्या है 1/2 है, और ये तो जी से बिलोंग नहीं करते, सो ये क्या है, आइडियल हो ही नहीं सकता। नॉट ए नॉट सी, ए और सी तो हो ही नहीं सकते, प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो क्या है ये आइडियल हो ही नहीं सकता। एज जी इज़ नॉट आइडियल सो इट कैन नॉट प्राइम आइडियल नॉट मैक्सिमम आइडियल। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सिंस जी इज़ अ रिंग, जी क्या है, एक रिंग है। सी ऑप्शन नहीं, सब रिंग वाला। सिंस बी, सी बी इज़ करेक्ट सिंस जी इज़ अ रिंग, जी क्या है, एक रिंग है, एंड आल्सो अ सब रिंग ऑफ द रिंग क्यू, और ये रिंग क्यू की भी क्या है, सब रिंग है। देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ सब रिंग ऑफ द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर, सो करेक्ट ऑप्शन इज सब रिंग। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 1 + q cos x इज इक्वल टू 0 इज आ, इसका सेट दिया गया क्या है, ए ऑप्शन क्या है, पाई प्लस एन पाई, एन बिलोंग टू जी है। ऑप्शन बी है 2n पाई, एन बिलोंग टू जी है, पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन जी, एन बिलोंग टू जी है, पाई प्लस 2n पाई, एन बिलोंग टू जी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कॉस इस साइड पर रहा, -1 उधर चला गया, तो x का जब हमने इन्वर्स निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 2n + 1 इंटू पाई आ गया, तो ये क्या आ गया, पाई प्लस 2n पाई, ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड फ्रॉम अ ग्रुप अंडर, नॉन ज़ीरो एलिमेंट फील्ड के क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में। अच्छा, ये क्या है, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि फील्ड में जो ग्रुप बनता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन।
ऑप्शन ए नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन बिकॉज द एडिटिव आइडेंटिटी इज नॉट प्रेजेंट, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट बी कास्ट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन तो एसोसिएटिव ही नहीं होती। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो एसोसिएटिव नहीं होती, इसलिए ये तो ग्रुप बना ही नहीं सकते। और एडिशन भी ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी multiplication. Non-zero element of a field form a group under multiplication. Next time, let Q the set of rational number, then Q under root 3 is equal to A plus B under root 3. A B belong to Q is a vector space over Q with dimension. अब हमने क्या करनी है, इस सेट की हमने dimension बतानी है। अच्छा, क्विक रिस्पॉन्स है, ऑप्शन कौन सा हो सकता है, डिमेंशन 2 हो सकती है। इसकी डिमेंशन 1 तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी, इसका मतलब है इसमें इसकी डिमेंशन क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 तो हो नहीं सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 4 भी नहीं हो सकती। इसका सोल्यूशन देखते हैं। डिमेंशन इज 2 इज करेक्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स एग्जैक्टली 2 रैशनल नंबर टू रिप्रेजेंट्स इट्स एलिमेंट। देखो इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसकी कितने रैशनल नंबर रिक्वायर्स होंगे, 2 रैशनल नंबर रिक्वायर्स होंगे, तो इसकी डिमेंशन भी क्या होगी, 2 होगी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। कितने रैशनल नंबर है, 1 and 3 इज़ अ बेसिस। ये क्या है, बेसिस है। टू प्रूव दैट 1 and अंडर रूट 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट पुट a plus b अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, केस 1 देखते हैं। लेट b इज इक्वल टू 0, this implies that a is also equal to 0, then 1 and under root 3 are linearly independent। अब केस 2 देखते हैं। अगर b 0 नहीं है then b under root 3 is equal to minus a, so under root 3 is equal to minus a divided by b। Since under root 3 cannot be written in the form of a over b, so case 1 exists here। 1 and 3 are basis vector। देखो ये जो है अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इसे हम रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, सो इट इज़ नॉट ट्रू। केस 1 इज ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट्स डिमेंशन इज 2। नेक्स्ट है, लेट W be a subspace of the space R³ if dimension of W is equal to 0, then W is a line through the origin 0, origin plane through the origin, entire space R3 a point। सबसे पहले देखते हैं a point is dimension, so option D is correct। देखो let W be a space of the space R3 if dimension is equal to 0। हमेशा जो पॉइंट होता है उसकी डिमेंशन क्या होती है, 0 पे होती है। सो सिंस डिमेंशन R3 इज इक्वल टू 3, जो R3 है इसकी डिमेंशन क्या होगी, 3 होगी। सिंस डिमेंशन ऑफ W कैन बी 0, 1, 2 और 3। इफ डिमेंशन W इज इक्वल टू 1 देन W इज अ पॉइंट। If dimension W is equal to 1, then W is a line through the origin. If W is equal to 2, it is a plane through the region. If it is dimension is 3, then W is the entire space. So correct option is D. Let be so if dimension of W is equal to 0, then it is a point. Next, let Pn into T be a vector space of all polynomial of degrees less than equal to n. Then dimension of Pn into T is equal to n minus 1. Dimension of Pn into T is equal to n. Dimension of Pn into T is equal to n plus 1 या 2। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द सेट S is equal to 1 t square t cube up to tn of n plus 1 polynomial is a basis of Pn। Specifically, any polynomial f into t of degree is less than equal to n can be expressed as a linear combination of these power of t, and one can show that these polynomials are linearly independent. Therefore, dimension Pn into t is equal to n plus 1. So correct option is n plus 1। इसके क्या मतलब है कि कोई भी हम इस पोलिनोमियल का सेट दिया गया तो हम इसे लिनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी क्या है, डिमेंशन क्या होती है, n plus 1 होती है। नेक्स्ट है, a 1-to-1 linear transformation preserves
अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रिजर्व करती है? 1 to 1 बेसिस बट नॉट डिमेंशन, बेसिस एंड dimension but not basis, none of these. इसका सोल्यूशन देते हैं. रिकॉल दैट अ 1 to 1 लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियर इंडिपेंडेंट. वो क्या करता था? 1 to 1 लीनियर ऑपरेटर लीनियर इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करता था. By rank nullity theorem, dimension of d into t is equal to dimension of nullity of t plus dimension of rank of 3, which gives that dimension of dimension of d into t is equal to dimension of rank of t, since for a 1 to 1 linear transformation dimension of t is equal to 0. From the above remarks we have basis and dimension. इसका यह मतलब है कि जो 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है ये किसको प्रिजर्व करता है? बेसिस एंड डिमेंशन दोनों को प्रिजर्व करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. इन द ग्रुप 0 naught of all integer where a naught b is equal to a plus b plus 1 for a b belong to z, the inverse of -3 is. अब ये क्या है? हमें क्या दिया गया है कि एक ऑपरेटर दिया गया जिसको नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है. हमने इसमें से इनवर्स ऑफ -3 बताना है. हमें गिवन क्या है? ए नॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 ए बी बिलोंग टू जी. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, एक ये देख ले. फॉर एनी एलिमेंट ए इट्स इनवर्स a prime is defined as a naught a prime is equal to e, where e is the identity element. So first it is important to know that the identity element e with respect to binary operation not which is. सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे. आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट e is like an identity function. It makes no change when operated on any element. That is e naught a is equal to a naught e is equal to a for all a. So now we calculate e with respect to naught defined as a dot b is equal to a plus b. a naught e is equal to a. अब a plus e plus 1 is equal to a. So e is equal to -1. तो आइडेंटिटी क्या आ गई? -1 आ गई. नेक्स्ट है, नाउ लेट ए बी द इनवर्स ऑफ -3. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स -3 डॉट नॉट ए इज इक्वल टू ई. अब हम क्या करेंगे? -3 प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू -1 के इक्वल कर लेंगे. सो हमारे पास ए क्या आ गया? 1 आ गया. करेक्ट ऑप्शन इनवर्स ऑफ -3 इज 1 विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन. So correct option is option D. Next, the set Z of all integer is not a vector space over the field R of real numbers. Under ordering addition plus multiplication of real number because. इस क्वेश्चन में क्या करें? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर अंडर ऑर्डरिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर. ये क्या है कि फील्ड नहीं है ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर. अच्छा, जी प्लस इज अ रिंग, जी क्रॉस इज नॉट अ फील्ड, जी क्रॉस इज नॉट अ ग्रुप. ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर डज नॉट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी बाय आर. हम सोल्यूशन देखते हैं इसका. चेक बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस आर. जब वेक्टर एडिशन सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, सो नो प्रॉब्लम. Scalar multiplication for a is equal to 1 by 2 belong to R, x is equal to a, z belong to z, and x is equal to 1 by 2 does not belong to z. So ordinary multiplication of real number does not define a scalar multiplication of z by R. Its main correct option is option D. Next time, let G be an abelian group, then phi क्या एक फंक्शन है g to g गिवन बाय इज एन एटोमॉर्फिज्म. ये क्या है? एटोमॉर्फिज्म है. फाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, फाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, फाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स. सोल्यूशन देखते हैं. वेल नॉन थ्योरम है. लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप. जी क्या है? कि एबिलियन ग्रुप है. देन फाई जी टू जी बी आ फाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. ये क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है. ये हमारे पास क्या है? एक थ्योरम है.
और नॉट ए क्या है, काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि जी इज इक्वल टू ए 3 इज इक्वल टू ई, सो होल ग्रुप इज इक्वल टू ए स्केयर, 5 इंटू ए इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू ई, A2 इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट, सो इट इज़ आल्सो नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या है, बाइजेक्शन नहीं है। बी इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप मेड टू आइडेंटिटी, दिस फंक्शन कैन नॉट बी 1 to 1 and on 2, so it is not a bijection, so it is not a automorphism। ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसलिए क्या हो सकता है, ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, सी में भी ये सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, let G be a group in which G square is equal to 1 for all G in group G, then G is abelian, cyclic, abelian but not cyclic, not abelian। Let G be a group in which G square is equal to 1 for all G in G, then G is abelian। ये हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है, हम इसे प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, as G square is equal to 1 for all G belong to G, so for any A B belong to G we have A square is equal to 1 and B square is equal to 1 and A B का whole square is equal to 1। अच्छा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब हमने इसे प्रूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट, तो ये क्या आ गया, एबिलियन ग्रुप आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट है जी, लेट जी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए क्यूब, सो ए बी इज इक्वल टू B A inverse, then number of distinct left coset of H is equal to B in G is कितनी है, 1 2 3 4। so G is equal to A cube is equal to B cube is equal to A B is equal to B A inverse। जब हमने कम्यूट किया तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 6 आ गया, एंड H इज इक्वल टू B इनवर्स इज इक्वल टू E, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। सो द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स आर, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स आर कितने होते हैं, फार्मूला है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ कोसेट्स। अब 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, a linear transformation T U to V is 1 to 1 if and only if kernel of T is equal to U V 0 image of T। a linear transformation T U to V is 1 to 1 if and only if kernel of T is equal to set 0। इसको हम प्रूव कर देते हैं, कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू सेट 0, पुट टी इंटू एक्स इज इक्वल टू टी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू यू, टी इंटू एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू 0, टी इंटू माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेट 0 सी। अच्छा, कन्वर्सली लेट टी बी 1 to 1, टेक एनी x belong to kernel of t, then t x is equal to 0 is equal to t of 0, so x is